What's up, everyone? I hope you all are doing good. So, today is 21st of March, and it was a great day. And overall, it was a great month for me because you all know कि मैंने जैन में वीडियो डाली थी that I lost 600K in funding. Then in Feb, I have not made what I aimed for. I lost few of my funded account as well and few of my challenge account as well. And after 2 tough months, finally I have a great month, and March was generally a great month. I aimed for 5 digit payouts. In combining all, I aimed for 5 digit in payout and I reached there. And basically, it was a great month. And so many of you asked me that whether one strategy is enough or how to manage yourself after one loss or after blowing your account or after having one bad day or after having one bad week or after having one bad month. So you guys need to realize this thing that one red day is not equal to not no let's start from the one red trade. One red trade, it's not equal to one red day. One red day is not equal to one red week. One red week is not equal to one red month, and one red month is not equal to one red year. अगर तुम्हारा जनवरी में लॉस हुआ है, दैट डजंट मीन तुम्हारा बाकी का जो पूरा साल बचा उसमें भी लॉस होगा. अगर तुम्हारा फेब में लॉस हुआ है, दैट डजंट मीन तुम्हारा पूरे साल ही लॉस होगा. अगर तुम्हारा मार्च के फर्स्ट वीक में लॉस हुआ है, दैट डजंट मीन जो मार्च के बाकी के 3 वीक है उसमें भी तुम्हारा लॉस होगा. एंड अगर तुमने आज ट्रेड लिया एंड तुम दिन के 2 या 3 ट्रेड लेते हो, तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, दैट डजंट मीन जो तुम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हो उसमें भी लॉस होगा. You guys have to build your psychology. You guys have to be mentally strong, and you guys have to understand this thing that one bad trade is not equal to a bad day, and one bad day is not equal to one bad week, and one bad week is not equal to one bad month, and one bad month is not equal to one bad year. मेरा भी मंथ खराब था जनवरी, मेरा भी मंथ खराब था फरवरी, but I made decent amount of payout in January and February, and finally जो मैं एम कर रहा था, जो मैं सोच के चल रहा था, आई अचीव दैट इन मार्च. सो स्टार्टिंग के मेरे 2 मंथ वॉज नॉट एट ऑल गुड एंड आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग. I realized this thing from the very beginning that strategy hopping after making few losses or after having few losing weeks or month will not take me anywhere. I know this thing that there is one thing which took me from complete zero to 1.5 million in funding, and by doing the same thing I come from 1.5 million funding to around 800 or 900,000 dollar in funding. Then I build something back up. Then in Feb I lose something again. Then in March I build up again. So that is the thing. One bad day, one bad trade, one bad week and one bad month does not mean that you are doing something wrong. मैं जो पहले कर रहा था इसके चलते मैं 0 से 1.5 पे आया. मैंने जनवरी एंड फरवरी में वही चीज़ करी. Unfortunately, January and February मेरा अच्छा नहीं गया. Then in March, I did the very same thing. Now it was a great start of the day as well because I wake up at around 11 a.m. in the morning and 4:39 पे my payout from Titan Capital got approved and today is 21st and कल 20th of March थी. Yesterday I got my payout from 5%. So in last 2 days I've got my 2 payouts. Now there are so many people who are asking why I don't share the amount. That is because you must have heard that news that from April 26 the government has issued something where they're gonna track each and every single thing, your social medias, your trading account and each and every single thing to see what exactly you are doing. And I don't want to show all these things to all these government officials, and I want to keep all these things private. That is the reason why I start hiding the payout amount. Apart from that, you can go on the Discord of any particular prop firm and you can find the payout there as well. बिकॉज चाहे वो कॉन्टेकल हो, चाहे टाइटन हो, चाहे इंस्टेंट फंडिंग हो, ये 3 प्रॉप फर्म तो बेसिकली अपने डिस्कॉर्ड पर डालती हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट फंडिंग पिप्स नहीं डालती. फंडिंग पिप्स का मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया था, आई टोल्ड यू ऑल. So I'm gonna buy a new account as well. And one more question which you guys asked me is कि मैं अपने जो पे आउट्स होता है उसका करता क्या हूँ. सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज, जो मेरे पहले पे आउट आए हैं ना, मैंने काफ़ी सारे पे आउट शो भी नहीं करे बिकॉज आई ट्राई टू कीप फ्यू थिंग्स प्राइवेट एज वेल. सो हाफ ऑफ माई पे आउट आई सेव्ड एंड जो मेरे रिसेंट 2 पे आउट आए हैं, इन पे आउट को मैं कंप्लीट यूज़ करने वाला हूँ. सो हाउ आई एम गोना यूज़ these 2 पे आउट्स. बेसिकली आई एम गोना बाय $200,000 account of funding pips. I'm gonna buy one $200,000 account of Funder Pro and one $200,000 account of instant funding. My mistake.
आई एम नॉट गोना बाय। मैं ऑलरेडी $200,000 का अकाउंट फंडिंग से खरीद चुका हूँ। आई विल शो यू। मैं ऑलरेडी एक $200,000 का अकाउंट फंडअप को ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। येस्टरडे ओनली आफ्टर गेटिंग पे आउट फ्रॉम 5% आई परचेज द अकाउंट एंड अब मेरे को एक इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट खरीदना है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर कंटिन्यूसली आस्किंग मी टू गिव अ रिव्यू अबाउट फंडेड स्क्वाड, and Funded Squad is coming up with some new plan and they removed some rule as well. So in the beginning I told you all that I am against all these instant funded account, not about instant funding prop firm, about instant funded account अब वो किसी भी prop firm का हो, and that was the reason why I was not trading instant funding, and that is the reason why I was not trading Funded Squad. But now they have come up with two-step account and they have some decent plan and two-step account, so I'm definitely gonna try it. Apart from that, Parida is already promoting Funded Squad and Parida is already talking about Funded Squad, so I thought चलो भाई try करते हैं. So I'm gonna buy a Funded Squad account as well. I'm not gonna buy, I already purchased a Funded Squad account with Parida's code. तो भाई परिडा तू देख रहा है ना, नेक्स्ट टाइम जो गिव अवे होगा फंडेड स्क्वाड का मेरे को चाहिए, बिकॉज तेरा लिंक एंड तेरा कोड यूज करके मैंने परचेज करा है, एंड होपफुली आई विल रीच टू द पे आउट स्टेज एंड होपफुली आई विल गेट द पे आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टेंट फंडिंग मैं खरीद लूंगा. नाउ ये जो मेरा हाफ पे आउट था मैं उसको ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ. जो 2 पे आउट थे इससे मैं 3 या 4 परफॉर्म खरीद चुका हूँ. जो रिमेनिंग पे आउट है फ्रॉम दैट अमाउंट what I'm gonna do is I'm gonna build my trading setup, because what you are seeing here या जो प्रीवियस वीडियो में तुमने मेरा देखा है ना बैकग्राउंड में जो पीसी है एंड एवरीथिंग, वो मेरे भाई का है. And I'll basically trade on one single laptop and one iPad and phone. That is what exactly I need. But what I realized after losing a lot of funding and so many payouts in last 2 months is एक ट्रेडिंग डेस्क होना ज़रूरी है भाई, कि जहाँ पे मेरा एक डिफाइंड टाइम है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ एंड उस डिफाइंड टाइम में मैं सिर्फ वहाँ बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ. नॉट लाइक कि मैं उठा ट्रेड मारा देन वापस सो गया, देन उठा ट्रेड मारा वापस सो गया, मन करा तो मैं बाहर चला गया, जिम में ट्रेड मार दिया फ़ोन से. बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीज़न मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें कंट्रोल कर चुका हूँ, बट all these things kept on happening, and because of all these reasons I am gonna use the payout money to build a proper trading setup. Apart from that, I'm gonna renovate my room so that there will be a better vibe in my room, and I'll try to make it something like a trading studio, or you can say a YouTube studio where I can shoot the video as well, because 2.5 लाख का कैमरा ले लिया, so एक प्रॉपर अच्छा सेटअप भी होना चाहिए ना वीडियो शूट करने के लिए. So that's exactly how I'm gonna use my last 2 payout money. And apart from that, ये Titan Capital का account है ना, this is not the one from which I am doing Road to BMW. Road to BMW के मेरा separate account था, वो मैंने breach कर दिया था. I again purchased the account which costed me $692, and उस account को purchase करके I passed phase 1 and phase 2. पिछले वीक में थोड़ा फीवर था मेरे को, जिस वजह से मैं अपडेट नहीं कर पाया. सो इंस्टाग्राम पे वीक 4 एंड वीक 5 की दोनों एक साथ वीडियो डाल दूंगा. सो आई क्लियर्ड फेज़ 1 एंड फेज़ 2. मैंने क्या ट्रेड लिए थे, कैसे मैंने फेज़ 1 फेज़ 2 पास करा, अभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ वो चीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट, टुडे इज 21st एंड आज ही मैंने यूट्यूब लाइव पे गिव अवे विनर अनाउंस करे हैं प्रीवियस टाइटन कैपिटल के $10,000 अकाउंट के. नाउ आई एम अगेन डूइंग $10,000 account giveaway with Titan Capital, and on YouTube live I have said this thing. There are so many people who purchase the account using my code or purchase the account using my link, and then they breach the account and they come up to me saying that bro, we supported you, we use your code, and now you should give us the account, which is true. Because of all these people I am able to do all these sort of giveaways. So going ahead, only those people who are using my code or purchasing the account using my link gonna get the giveaway account, and that too particularly for Instagram and YouTube. Apart from that, Twitter पे and Discord में भाई बहुत सारे गिव अवे होते रहते हैं. 300 ब्लूबेरी के $5,000 अकाउंट गिव अवे डिस्कॉर्ड में ऑलरेडी चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट, रिसेंटली $55,000 अकाउंट नॉस्ट्रो के गिव अवे हुए थे. सो ऑल दीज गिव अवे ऑफ $5,000 अकाउंट kept on happening in Discord and on Twitter. वो रैंडम होंगे कम्प्लीटली, उसमें सबको चांस मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वीडियोस मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ जिसके लिए मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा हूँ, दोज गिव अवे विल बी पर्टिकुलरली फॉर दोज पीपल जो कोड यूज़ कर रहे हैं या जो मेरे लिंक से परचेज कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल. नाउ यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन sign up using that link, and if you want you can use the code Morningstar Rohit to get 30% off from Titan Capital. अगेन दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर्ड वीडियो. अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो होती तो मैं 10 प्रॉफिट के और नाम नहीं ले रहा होता. अभी आई एम गोना शो यू, मैंने फंडिंग विप्स का अकाउंट परचेज करा है. फंडिंग विप्स का अकाउंट मैंने कल ही परचेज करा. आई विल शो यू. एंड फंडिंग विप्स का अकाउंट मैंने परचेज करके एक ट्रेड में उसका फेज़ 1 पास भी कर दिया. मिनिमम ट्रेडिंग डेज बचे हैं, वो मैं तुमको
अब दिखा दूंगा। फंडर रूबी मैंने परचेज करा, वो भी तुमको दिखा दूंगा। फंडेड स्क्वाड भी परचेज करा, वो भी तुमको दिखा दूंगा। एंड एक $200,000 का मेरा जो कॉन्टेगल था वो अगेन अनफॉर्चुनेटली मेरे से ब्रीच हो गया, तो मैंने वो भी परचेज करा था, वो भी मैं तुमको दिखा दूंगा। सो बेसिकली सारे प्रॉफिट मैं तुमको दिखा रहा हूँ। Apart from that, I'm gonna show you all the trades I have taken in my Road to BMW $200,000 Titan Capital account, जिसको मैंने फेज 1 एंड फेज 2 में जितने भी ट्रेड लेके उसको पास करा है। I'll show you all. So without wasting any time, let's directly move on to the charts. So these are the two accounts. You can see the date 21st March. That is कल रात को मैंने 12 बजे के बाद परचेज करा था. That is why this is showing this. मैंने एक अकाउंट ये खरीदा, देन आई परचेज द सेकंड अकाउंट। 2 अकाउंट मैंने फंडिंग पिप्स के खरीदे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई परचेज 1 अकाउंट ऑफ फंडर प्रो, अगेन ये भी मैंने कल ही खरीदा था सेम टाइम पे। इसके अलावा मैं पहले ही एक अकाउंट फंडेड स्क्वाड का खरीद चुका था। इसमें मैंने अभी एक ही ट्रेड लिया है। फंडेड स्क्वाड का अकाउंट कहाँ है यार? फंडेड स्क्वाड यस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक $100,000 का अकाउंट फंडेड स्क्वाड से भी खरीद चुका हूँ, विच आई परचेज ऑन 19th, एंड ये मैंने मॉर्निंग में खरीदा था। ये भी अकाउंट मेरा 2% अप है एज ऑफ नाउ, एंड इंस्टेंट फंडिंग मेरे को अभी खरीदना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। सो हियर इज द चार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूरे अकाउंट में सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करा है। दिस वॉज द ट्रेड विच आई टुक इन ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट। वो जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, आई विल टॉक अबाउट दैट थिंग इन दैट वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। So the first trade which I have taken is this one trade in the phase 1 account of Titan Capital $200,000 account, जिसमें मैंने जो प्रीवियस गोल्ड का ऑल टाइम हाई था, विच इज़ दिस, ये जो लेवल था ये प्रीवियस गोल्ड का ऑल टाइम हाई था, एंड फ्रॉम दिस लेवल आई टुक अ शॉर्ट ट्रेड, बट देयर वाज अ बिग अपसाइड रैली एंड यहाँ पे मेरा SL हिट हुआ। जस्ट अ मिनट, आई लॉग इन टू द टाइटन कैपिटल अकाउंट एंड आई विल शो यू द हिस्ट्री एज वेल. So this was the phase 2 account which I already passed. These are the payout which I received. So let's move on to the phase 1 account. So this is the recent phase 1 account, जिसमें मैंने जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था, फर्स्ट दिन ही मैंने 7.6 नहीं आई गेट $7,600 विच इज 3.75% का लॉस कर दिया था। एंड एज आई शोड यू, दिस वाज द ट्रेड जहाँ पे मैंने यहाँ पे गोल्ड को सेल करा था फ्रॉम ऑल टाइम हाई, एंड गोल्ड कंटिन्यूज टू रैली अपसाइड। एंड यहाँ पे मेरा टारगेट 1:2 का था, जिसमें मेरा अकाउंट सीधा एक ही ट्रेड में पास हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा इसमें लॉस हो गया। सो फर्स्ट डे आई लॉस्ट $7,648, एंड हियर इज द ट्रेड हिस्ट्री एज वेल। यहाँ मैंने 53.73 विच इज ऑल टाइम हाई पे मैंने शॉर्ट करा था। यहाँ पे मेरा SL हिट हो गया एंड मेरा TP था 33.5, जहाँ पे मेरा पूरा टारगेट हिट हो जाता। नाउ द सेकंड ट्रेड विच आई टुक इज, नाउ आई रियलाइज कि इवन अगर गोल्ड को नीचे गिरना भी है ना, इट विल at least go to 3,000, then it will fall. So I took a buy side trade. मैंने पहले SL इसका काफी छोटा रखा था, just this below this previous wick, but then I realized it is coming down, so मैंने इसका थोड़ा जो SL है उसको increase कर दिया था। I'll aim for 1:1 and मैंने इसको close कर दिया यहाँ पे 3,000 के लेवल पे। Then I took a second trade जहाँ पे मैंने गोल्ड को short करा, and again I made money in this particular trade, and here you can see the first trade where I took a buy side trade in gold, I made $8,280, and the second trade which I took a sell side trade from a 3,000 level, which is a round level, I made $11,488. Then I was left with $4,000 only in order to clear the account, and मैंने एक quick scalp लिया था when gold comes down to this level and there was this green candle and then gold start forming a red candle again. I took a quick scalp with the SL of this candle high. And I booked $4,000 here, and with this I cleared my account. And then on the third day I took a trade with 0.01 lot just to complete my minimum trading days, and that's how. So first day पे मैंने $7,000 का लॉस करा, then second day I made $23,884 in 3 trades. So एक ही दिन में मैंने पूरा अकाउंट क्लियर कर दिया। From drawdown of $7,648 I made everything back. I'll go in 8% पॉजिटिव, प्लस जो मेरा 3.75% का ड्रॉडाउन था उसको मैंने पूरा रिकवर कर दिया। देन उसके बाद 0.01 लॉट से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। आई पास द अकाउंट ऑन मंडे, आई गेट फेज 2 अकाउंट ऑन मंडे, एंड देन फेज 2 अकाउंट में फर्स्ट दिन जो मैंने ट्रेड लिया था ना, ये ट्रेड मैंने अनफॉर्चुनेटली जल्दी क्लोज कर दिया, जो अगर मैं नहीं करता तो मेरा अकाउंट उसी दिन क्लियर हो जाता। सो आई टुक दिस ट्रेड अगेन with a target of 3,000, and again जो मैंने अपना SL रखा था I kept below this, but जब ये इतना नीचे आ रहा था I thought I should increase my SL little bit more. Then जो मेरा टारगेट था
मेरा टारगेट था पूरा 3000 लेवल एंड यहाँ पे मेरा पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड में क्लियर हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर दिया था। देन आई वेंट टू जिम एंड आई रिमेंबर उस दिन FRX लॉ भी दिल्ली आ रखा था एंड वो भी मेरे साथ जिम करने आया था। सो आई क्लोज द ट्रेड एंड आई वाज लाइक कि जिम करते हुए कौन ट्रेड करेगा एंड ना जिम हो पाएगा ना ट्रेड हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा एंड यहाँ से रिवर्स हुआ तो और दिमाग खराब होगा। सो बेटर लेट मी क्लोज द ट्रेड एंड अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता सो यहीं पे मेरा हिट हो जाता TP एंड अकाउंट पास हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली आई क्लोज द ट्रेड हेयर एंड आई मेड $7,348। आई मेरे को सिर्फ $2,700 और बनाने थे बिकॉज फेज 2 का टारगेट होता है ओनली 5%, विच इज $10,000। मेरे को $200,000 के अकाउंट में बनाना था एंड आई वॉज लेफ्ट विद $2,700 समथिंग डॉलर। आई टुक द ट्रेड नेक्स्ट डे एंड मैं ना ये ना लिमिट ऑर्डर लगा के सो गया था। ये मैंने राउंड लेवल पे लगाया था बिकॉज गोल्ड प्रीवियसली आया था 3005 पे। सो आई थॉट it will at least go up to 3010 level and from there it will go down and मेरे को सिर्फ $2,700 तो चाहिए। सो आई गेस मैंने 8 या 10 लॉट लिए थे इसके अंदर। सो मेरे को थोड़ा सा ही चाहिए एंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देन थोड़ा सा रिट्रेस भी होगा। वंस इट रिट्रेस बैक टू दिस लेवल मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली रिट्रेसमेंट आया है नहीं एंड व्हेन आई वोक अप एट समवेयर अराउंड 12। यहाँ ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट चल रहा था। आई वॉज लाइक कि लेट मी होल्ड इट टिल 3015। देन आई वॉज लाइक लेट मी होल्ड इट टिल 3020, बट देन आई रियलाइज कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा। देन आई बुक द लॉस एंड मेरा अकाउंट वापस से ब्रेक इवन पे आ गया था। सो फर्स्ट डे I made profit, second day I made loss, then third day during NFP I took few quick scalps. So this was the NFP candle 11:30 candle and इसके बाद 12 AM पे speech start हुई थी। So I took quick scalps here. There was not a proper trade like all these trade। ये तो पूरा नेगेटिव RRE हो गया था यार बिकॉज मैं ऐसे लगाना भूल गया था एंड बाद में मैंने लगाया जस्ट टू प्रोटेक्ट माई अकाउंट की ब्रेक इवन पे क्लोज हो जाए। बट ऑल द अदर ट्रेड्स वर 1:2 और 1:1 और 1:1.5, बट these were quick 1:1 like with very small SL and with very small TP. I took all these trade and I took two buy side trade here, booked profit in that, took a sell side trade, booked profit in that, and on this retest I again took a buy side trade, booked profit in that. From 3050 level I took a sell side trade because again 3050 is a round level. I took a sell side trade, booked my profit here, and then my account was cleared basically. So these were all the trade and that's how I cleared my phase 1 and phase 2 account of Titan Capital. Now again I am funded with a $200,000 account and road to BMW is on. Now my goal is to just aim for 2%. Every time I aim for big returns मैं हमेशा करता हूँ. So this time I don't want to do any sort of, so I'll aim for only 2% and I have plenty of time. Like अभी मेरा फंडेड अकाउंट आया नहीं है. I passed this on 19. 2 से 3 दिन लगते हैं. फ्राइडे ऑलरेडी हो चुका है. Today is 21st. So most probably I'll get my funded account on Monday and Monday से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा. So I have a plenty of time. 2 वीक के बाद बाई वीकली पे आउट विंडो है इनकी. So दो वीक के बाद मेरे को पे आउट मिलेगा. So what I'm gonna do is मैं पहले डायरेक्टली 1% 1.5% रिस्क कर रहा था. Now I'm gonna reduce the risk in this particular account to 0.5%. Still $200,000 का अकाउंट है. 0.5% is equal to $1,000. $1,000 का रिस्क रखूंगा. 1:1 या 1:2 ही एम करूंगा. And as soon as I made $4,000, I'm gonna request the payout. Now my only goal is to take as many payout as possible. मेरा बस एक गोल है, कुछ भी हो जाए, डेली ड्रॉडाउन या ओवरऑल ड्रॉडाउन के चलते मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा बाय मिस्टेक मेरे से 1 मिनट रूल ब्रीच हो गया, विच इज 1 मिनट के अंदर SL लगाना मैंडेटरी है कोई भी ट्रेड हो, ओनली इन फंडेड अकाउंट. या फिर मेरे से कोई और रूल बाय मिस्टेक न्यूज ट्रेडिंग रूल कोई ब्रीच हो गया, वो उसको साइड रख के मेरा बस एक ही गोल है, मेरा डेली ड्रॉडाउन या मेरा ओवरऑल ड्रॉडाउन हिट नहीं होना चाहिए. एंड सो मेनी ऑफ यू वर कंटिन्यूअसली आस्किंग मी व्हाई आई एम यूजिंग टाइटन कैपिटल फॉर माय रोड टू BMW सीरीज. एंड उसके अलावा एक और चीज पूछ रहे हैं कि टू मेक अ डिटेल रिव्यू वीडियो अबाउट टाइटन कैपिटल. सो आई एम गोना मेक अ डिटेल रिव्यू वीडियो ऑफ टाइटन कैपिटल एज वेल एंड उसमें तुमको पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा व्हाई आई एम यूजिंग टाइटन कैपिटल फॉर माय रोड टू BMW सीरीज. एक छोटा सा तुमको बता देता हूँ भाई, मैं देयर वाज नो मार्टिंगेल रूल, देयर वाज नो कंसिस्टेंसी रूल. यार कितने मेरे को लिटरली लिस्ट बनानी पड़ेगी जो 50 रूल तुमको दूसरे प्लेटफॉर्म मिलते हैं ना. रिस्क पर ट्रेड, फंडेड छोड़ो, तुमको चैलेंज फेज में सारे रिस्क डाल दे तुम्हारे ऊपर, कुछ भी नहीं है. फंडेड होने के बाद तुम्हारे ऊपर बस एक ही रूल है, विच इज 1 मिनट के अंदर SL लगा दो. दैट्स इट, लिटरली दैट्स
इट। इसके अलावा कुछ रूल ही नहीं है। 3% गैम्बलिंग रूल वो ऑलमोस्ट यार सब प्रॉप फर्म में होता है, वो तो कॉमन है। तो वो तो तुम दिमाग में लेके चलो कि किसी प्रॉप फर्म में तुमको फंडेड होने के बाद 3% रिस्क नहीं करना, विच इज़ वेरी कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़ ट्रेडिंग का भाई उसमें भी तुमको लीनियंसी मिली हुई है कि SLTP अगर तुम्हारा हिट हो रहा है वो चलेगा, मैनुअली तुम ओपन या क्लोज नहीं कर सकते। सो यार कोई रूल ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, चैलेंज में कोई रूल नहीं है, जैसे तुमको मन करे वैसे ट्रेड करो। लॉट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई 2 लॉट से ऊपर नहीं खोल सकते, 3 लॉट से ऊपर नहीं खोल सकते, ऐसा नहीं है मार्टिंगेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है भाई मार्जिन रूल भी नहीं है। सो बहुत सारी चीजें यार, मैं तुमको दूसरी वीडियो में ना, मैं खुद मेरे को देखना पड़ेगा भाई जो कितने सारे रूल्स जो बाकी फालतू प्रॉफिट में लगा रखे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेड द वे यू वांट, लिटरली। मतलब इस प्रॉफिट में आई एम अगेन सेइंग दिस टू यू, मैं खुद 10 प्रॉफिट ट्रेड करता हूँ, मैं खुद 10 प्रॉफिट के बारे में बात भी करता हूँ, तुमको 10 प्रॉफिट दिखाता भी हूँ। मे बी इससे पहले तुम ऑलरेडी मेरी कॉन्टेकल, ब्लूबेरी और 4 प्रॉफिट की वीडियो देख चुके होगे। इस प्रॉफिट में मैंने फंडिंग भी परचेज करा, फंडर प्रो भी परचेज करा, फंडेड स्क्वाड भी परचेज करा, इंस्टेंट फंडिंग भी परचेज करूंगा। तुम ये सारी प्रॉफिट की वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी देख भी चुके हो, जिसमें ट्रेड कर रहा हूँ, रियल ट्रेड कर रहा हूँ। वीडियो बना के रिव्यू वीडियो नहीं डाली है मैंने, ट्रेड कर रहा हूँ। बट द थिंग इज, एज ऑफ नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉफिट एज गुड एज दिस जहाँ पे फ्रीली ट्रेड कर सकूँ विदाउट एनी बुलशिट रूल और विदाउट एनी बुलशिट थिंग। So that was the reason मैं एक डिटेल वीडियो डेफिनेटली इस पर बना दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम अश्योरिंग यू दिस थिंग नाउ दैट हाउ आई मैनेज ऑल माई फंडेड अकाउंट एंड टॉप 10 प्रॉप फर्म फॉर 2025। इन दोनों की वीडियो तुमको अप्रैल में डेफिनेटली मिल जाएगी विदाउट एनी फर्दर डिले। दैट्स द प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। अब इसमें मैं और डिले नहीं करूंगा। नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग आउटसाइड बिकॉज मार्च वॉज अ डिसेंट मंथ एंड मैं थोड़ा पीसफुली रहना चाहता हूँ एक वीक बाहर। आई एम गोना ट्रेड द चैलेंज अकाउंट, जो मैंने चैलेंज अकाउंट लिए हैं वो सब मैं ट्रेड करूंगा एंड दैट्स ऑल। एंड थोड़ा पीसफुल रहूंगा, फंडेड अकाउंट ट्रेड नहीं करूंगा। That's all for this video. I'll show you how I passed my phase 1 and phase 2 account. I'll show you almost all the things. Apart from that, I missed one thing, which is I have to show you the funding pips account. The funding pips account which I passed. Just a minute. Let me show you that as well. So funding pips का भी वापस से इनका MT5 आ गया है and they are also running 10% off. You can, if you want, you can buy the account. बट इन्होंने प्राइस काफ़ी बढ़ा दी है यार। पहले $444 का इनका $100,000 का अकाउंट आता था, अब वो $470 का आ रहा है। उसमें भी तुम सी ट्रेडर ले रहे हो तो $480 का पड़ रहा है। सो मैंने 2 अकाउंट ब्रीच कर दिए थे। आई परचेज 2 अकाउंट। दिस वॉज द अकाउंट जिसमें मैंने कल ही ट्रेड लिया, सॉरी आज ही मतलब ट्रेड लिया, एंड I took just one trade and in just one trade I cleared the account. अब इसमें just minimum trading days में वो complete करना है, 2 days left जो यहाँ पे तुमको दिखा रहा है। So this was the one trade, 4 लॉट से मैंने लिया था एक सिंगल ट्रेड। Let me show you the trade as well. Yes, it was a sell side trade, 3043 के लेवल से लिया था, which is this. ये सेम ट्रेड मैंने ब्लूबेरी में भी लिया था, 3043 समथिंग अराउंड दिस, यहाँ के लेवल से लिया था मैंने ट्रेड एंड आई बुक्ड माई प्रॉफिट हेयर विच इज एग्जैक्ट ये यहाँ था। I'll book my profit here, and with this my TP was 3023.39 and my closing price was 3022। मतलब थोड़ा जो फटाफट से विक मारी वहाँ पे थोड़ा ही चला गया, बट my TP was this which is previous support, वही मेरा TP था। From here I entered into the trade, I risked 4% directly. You can see it here, my SL was 4% and I aimed for 1:2, I made directly 8% and I cleared the account। just minimum trading days बचे हैं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वॉज द सेकेंड अकाउंट विच आई परचेस्ड। ये भी $1670 अप है, ये भी मैंने अभी ट्रेड करना स्टार्ट करा था। इसमें आई टुक 2 क्विक स्कैल्प फ्रॉम 3000 लेवल, जब नीचे गोल्ड पूरा फॉल कर गया था तो दिस 3000 लेवल I took a quick scalp, I exit. Firstly, I entered into a 0.01 lot trade just to make that हाँ भाई मैंने आज एक डे काउंट हो जाए बेसिकली मेरा, मैंने इसलिए लिया था। Then I entered into 3000 डॉलर, सॉरी मैं गोल्ड के 3000 लेवल पे एंटर करा and I entered here. If we go down on a 5-minute time frame, 3000 लेवल पे गोल्ड आया, then there was this green candle and I trailed my SL. मैंने अपना SL ट्रेल करा। I aim to clear this account as well in one single trade, but मैंने अपना SL ट्रेल करा and like मैनुअली नहीं था वो, like मैंने पुट नहीं कर रखा था यहाँ पे सिस्टम में, बट मैनुअली I trailed my SL. as soon as गोल्ड वापस से नीचे आया मैंने एग्जिट कर दिया to enter again at 2998 or 2997 level, because I was like कि 3000 is a round level, gold come to 3000 level, maybe it will go a little bit down to take the liquidity, then I'll enter again. So that was the reason मैंने यहाँ पे enter करा at 3000 जब यहाँ पे गोल्ड वापस से थोड़ा रिट्रेस कर रहा था, which is this week.
सो दैट आई थॉट कि ये पूरा नीचे तक आएगा टू 2998 और 2997, दैट आई एंटर अगेन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हैपन. अगर मेरा यही ट्रेड चल रहा होता सो आई कुड हैव पास द अकाउंट बिकॉज लॉट इसमें काफ़ी बड़े थे. आई टुक दिस ट्रेड विद 8 लॉट्स. सो मेरा यहीं पे इसी लेवल पे मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता बिकॉज फ्रॉम 3000 लेवल, या बिकॉज फ्रॉम 3000 लेवल यहाँ तक भी मेरा आता तो मेरा अकाउंट क्लियर था यहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली $1670 आई मेड इन दिस ट्रेड. लेट्स सी मंडे को वापस ट्रेड करेंगे इसके अंदर. होपफुली आई क्लियर दिस अकाउंट एज वेल एंड आई अगेन गेट फंडेड विद फंडिंग पिप्स. अपार्ट फ्रॉम दैट फंडर प्रो चल रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्टेंट फंडिंग का परचेज करूंगा. फंडेड स्क्वाड इज ऑलरेडी अप 2%. लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. See you in the next video. Make sure you hit the subscribe button. Make sure you like this video because तुम लोग बिना लाइक करे चले जाते हो. And if you don't like my video, so भाई ग्रोथ कैसे होगी भाई? सिल्वर बटन लेके आना है भाई. इस साल का गोल है सिल्वर बटन चाहिए मेरे को. इतने सारे मतलब पूरी एक वॉल पे मैं पे आउट लगवाऊंगा एंड पे आउट्स के बीच में होगा सिल्वर बटन. सो who gonna help me achieving that thing? You guys. So make sure you like the video. Make sure to subscribe and see you in the next video. Tata. Bye bye.